الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا لتبینن کہ ضرور بیان کرو گے تم ہو اسے للناس لوگوں کے لیے ولا تکتمون ہو اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے لوگوں سے فنبذوہ پس اسے پھینک دیا وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے واشتروا اور انہوں نے خرید لیا بہی اس کے بدلے میں ثمن قلیلا تھوڑی سی قیمت فبئس ما یشترون کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں یہود کے طعن اور ان کے طعن کا جواب ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر جو دلائل ذکر فرمائے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال لینے کو بھی اختیار کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں یہود کی اظہار ثانیوں پر آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کی اظہار ثانیوں یعنی تکلیفوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلائل تھے وہ ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اس کو چھپایا اور آپ کو کسی اور چیز کی خبر دی، پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جس چیز کی خبر دی تھی اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جس چیز کو چھپایا تھا اس پر وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی یہی آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ آیت پڑھ دی اور وہ جو بات تھی وہ عیاں کر دی جو ان کے دل میں تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا حکم دیا تھا اس کے چھپانے پر ان کی مذمت کی گئی ہے اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی امی کی اتباع کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے اور اللہ اس کے کلمات پر ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ ابن جریج
जरीज बयान करते हैं कि तौरात में ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने जिस दीन को अपने बंदों पर फर्ज किया है वो इस्लाम है, और इनके पास तौरात और अंजील में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा हुआ था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस शख्स से किसी चीज के इल्म के बारे में पूछा गया और इसने इसको छुपा लिया और इसके मुंह में क़यामत के दिन आग की लगाम डाली जाएगी। यानी जिसके बताने का बयान करने का अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको खिलाओ, हक बात कहो, हक बात का की गवाही दो, और इंसान उसको छुपा ले तो उस पर क़यामत के दिन आग की लगाम डाली जाएगी। हजरत इमाम अबू कासिम सुलेमान बिन अहमद तिबरानी रवायत करते हैं अल-मुअज्जमुल औस में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करे फिर इसको बयान ना करे तो इसकी मिसाल इस शख्स की तरह है जो खजाना हासिल कर ले फिर इसको खर्च ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे पढ़ते हैं जी, क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद जो था, क्यों फेंक दिया उन्होंने इस हुक्म को, क्योंकि इसके पीछे वो कुछ ना कुछ वसूल करते थे इनसे। माल वसूल किया करते थे नबी करीम अलैहिस्सलाम के की सिफात को छुपा कर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतवा युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाबि वलहुम अज़ाबुन अलीम। ना गुमान करो तुम उन लोगों के बारे में जो खुशी करते हैं इस पर जो जो वो लाए हैं और जो वो पसंद करते हैं। वयुहिब्बूना अन यहमदू, और वो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। बिमा लम यफ़अलू, उस पर जो उन्होंने किया ही नहीं। फला तहसबन्नहुम, और हरगिज ना गुमान करें वो बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाबि, कि वो अजाब से बच सकेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अगली आयत भी पढ़ लेते हैं, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इनके मुतालिक हरगिज ना समझना जो अपने कामों पर खुश होते हैं और जो ये पसंद करते हैं कि इनके कामों पर इनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं। इन लोगों के मुतालिक हरगिज ये गुमान ना करना कि वो अजाब से नजात पा जाएंगे, और इनके लिए दर्दनाक अजाब ही है। और अल्लाह ही की मलकियत में है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कादिर है। अल्लाह ताला ने इन यूद और मुशरिकीन के इज़ार रसानियों में से ये बयान फरमाया कि इनकी एक इज़ा यानी तकलीफ देने की रविश ये भी है कि वो कमज़ोर मुसलमानों को वरगलाने के लिए इनके दिलों में इस्लाम के खिलाफ शुबात डालते हैं, और वो इस पर ये चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए कि वो साले हैं, मुत्तकी हैं और बड़े सादिकुल कौल हैं, सच्चे कौल के मालिक हैं। और जाहिर है कि सूरत हाल में नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद भी और रासुल अकीदा जो मुसलमान हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी और रासुल अकीदा मुसलमानों को भी अजियत पहुंचती थी इनकी इन बातों की वजह से। दूसरी वजह ये भी है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात की आयात छुपाया करते थे, इसके बदले में अपने अरादतमंदों से नजराने वसूल करते थे और इन पर यह जाहिर करते थे कि वो बहुत बड़े आलिम और दीनदार हैं और वही मुक्तदा बनने के लायक हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में इनके इस फेल की सजा बयान की है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बयान करते हैं हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में तशरीफ ले जाते तो बाज़ मुनाफिकीन
पीछे रह जाते और आपके साथ ना जाते और अपने इस अमल पर खुश होते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाते तो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते और कस्में खाते और इस पर कस्में खाते कि जो काम उन्होंने किया है, यानी जहाज में आपके साथ शरीक नहीं हुए, इस पर इनकी तारीफ की जाए। तब ये आया करीमा नाजिल हुई, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़क़हूना बिमा अतव्वा युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाबि वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो अब हम आयत पढ़ रहे हैं इसी के हवाले से ये आया करीमा आई। मुसलमानों को चाहिए कि इस आयत की वईद से डरें और ये ना चाहें कि जो काम उन्होंने नहीं किया इन पर इनकी तारीफ की जाए। आम रूटीन में कुरान मजीद की आयत में आम मानी भी अल्फाज के एतबार से होता है, लेकिन खुसूसी मानी भी उसके एतबार में आता है। जैसे कि यहाँ पे बयान हो रहा है, यानी उनका यूद और निसारा का उन आयात को छुपा लेना या फिर मुनाफिकीन का जानबूझकर अल्लाह की राह में ना निकलना, उसके बाद जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने झूठे हीले बहाने लगाना। अब जो काम उन्होंने नहीं किया इस पर इनकी तारीफ की जाए, यानी कि उनको इस बात पे कि चाहे उन्होंने जहाद नहीं किया लेकिन फिर भी उनको सालिहीन में शामिल कर दिया जाए, उन्हें मुत्तकीन लोगों में शामिल कर दिया जाए और सादिकुल कौल लोगों में शामिल कर दिया जाए और उनके इस उज़्र को कबूल किया जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, जबकि नीयतें ही खराब थी, नीयतें ही गलत थी। जैसे कि बाज़ लोग अपने आप को आलिम, इलामा, मुफ्ती, शेखुल हदीस बल्कि हाफिजुल हदीस कहलाते हैं, जबकि वो इसके अहल नहीं होते। और अगर कोई मुसलमान किसी नेक काम के करने पर खुश हो या बुरा काम ना करने पर खुश हो तो ये ईमान की इलामत होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, लेकिन ये है कि वो अपनी झंडे नहीं लहराना चाहता या अपने उस नेक अमल को रियाकारी के जरिए ज़ाया नहीं कर देना चाहता। और जो रियाकारी के लिए सारे मामलात करता है वो यकीनी तौर पे रायगाह ही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स को अपनी नेकी से खुशी हो और बुराई पर अफसोस हो वो मोमिन कामिल है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इमाम तिर्मिज़ी शरीफ की ये अज-जामी सही में ये हदीस पाक आई है। अलबत्ता कोई नेक काम करके ये ख्वाहिश रखना कि इस पर इसकी दुनिया में तारीफ की जाए, इखलास के मुनाफी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों की तरफ मुतवज्जो होगा ताकि इनका फैसला फरमाया जाए। इस वक्त हर उम्मत दो जानों होकर बैठी होगी। सबसे पहले कुरान के हाफिज को बुलाया जाएगा और इस शख्स को बुलाया जाएगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, और मालदार शख्स को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान के कारी से फरमाएगा, क्या मैंने तुझे इस चीज़ का इल्म नहीं दिया था जो मैंने अपने रसूल पर नाजिल की? वो कहेगा, क्यों नहीं है मेरे रब? अल्लाह ताला फरमाएगा, तो तूने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? वो शख्स कहेगा, मैं रात दिन कुरान पढ़ता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोलता है। अल्लाह ताला फरमाएगा, बल्कि तूने ये इरादा किया था कि ये कहा जाए कि फलां शख्स कारी है, यानी अपने आप को कारी कहलवाने की नीयत से तूने हिफ्ज़ किया, कारी कहलाने की नीयत से तूने इस दीन के इल्म को पढ़ा, लेकिन तेरी दिल की कोई रग़बत ना थी या दिल में कोई नीयत ना थी अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो ये कहा गया। फिर मालदार शख्स को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तुझे माल में वुसअत नहीं दी थी, हालांकि तुझे किसी का मुहताज नहीं रखा? वो शख्स कहेगा, मेरे रब क्यों नहीं? अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर तूने मेरे दिए हुए माल में क्या अमल किया? वो शख्स कहेगा, मैं सिला रहमी करता था और सदका करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है। रिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोलता है। अल्लाह ताला फरमाएगा, बल्कि तेरा इरादा तो ये था कि ये कहा जाए कि फलां शख्स बड़ा सखी है, तो ये कहा गया, यानी तेरे नीयत ये थी कि तेरी नेकी का चर्चा हो, तेरे नेक होने का चर्चा हो, तो वो हो गया। फिर इस शख्स को लाया जाएगा जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो किस वजह से कत्ल किया गया था? वो शख्स कहेगा, मुझे तेरी राह में जहाद का हुक्म दिया गया था।
तो मैंने कताल किया हत्ता कि मैं कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोलता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोलता है। अल्लाह ताला फरमाएगा बल्कि तेरा इरादा ये था कि कहा जाए फलां शख्स बड़ा बहादुर है। तो ये कहा गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटने पर हाथ मारकर फरमाया, अबू हुरैरा, ये पहले वो 3 शख्स हैं जिससे दोज़ख की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में और इन अहादीस में नेकियों पर अप, अपनी तारीफ की ख्वाहिश रखने पर सख्त वईद है। अल्लाह पाक हमें नेकी की हिदायत दे और हम अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करें और हमारी नीयतों को सच्चा सुच्चा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सब बाजियों से ये दरख्वास्त की जाती है कि खुदारा टाइम पे सब बाजियां हाजिर हों। इस वक्त गिनती की 5 बाजियां हैं जो क्लास ले रही हैं और आप सबसे यही दरख्वास्त है जिनका कोई शरई उज़र नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपने मालिक की तरफ, अल्लाह के इस कुरान की तरफ राग़िब हों और पूरे इरादे के साथ। जब हमने नीयत की है तो पूरे इरादे के साथ इसके लिए कोशिश भी करें और क्लास में इसी वक्त पर हमारे साथ ज्वाइन हों। इसके अलावा पीछे से अपने लेसन रिवाइज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अनकरीब हमारा टेस्ट करीब आ रहा है, तो उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। पिछले सारे लेक्चर्स निकाल कर सुनिए और उनकी रीडिंग कीजिए जो हमने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पूरे रमज़ान में पढ़ा है, ताकि वक्त से पहले आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दें और ऐन वक्त पर कुछ मुश्किल पेश ना आए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।